السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کا نام ہے نقلی شہزادہ، اور اس کو لکھنے والے ہیں ہمایل خیر آبادی۔ خان بابا خان بابا آغو خان بابا، خان بابا کی پکار سنی تو خان بابا چونکے، مڑ کر دیکھا شہزادے ٹھہرو ان کی زبان سے نکلا، اور وہ ندی کی طرف دوڑ پڑے، لیکن اتنی دیر میں شہزادہ ندی میں کود چکا تھا۔ خان بابا ندی کے کنارے پہنچے، دیکھا کہ ایک لڑکا ندی کی بیچ دھار میں بہہ رہا ہے، اس کے ہوش اور حواس بھی باقی ہیں۔ وہ ندی کے تیز دھار سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے، دم سادے دھارے کو کاٹنا چاہتا ہے، لیکن پھر غوطہ کھا جاتا ہے، اور شہزادہ اس لڑکے کو بچانے کے لیے تیز دھار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خان بابا نے ندی کے کنارے کھڑے ہو کر پکارا، شہزادے دھارے کی طرف مت بڑھو، میں آیا۔ شہزادے نے دیکھا کہ خان بابا مدد کو آ گئے تو اس کی ہمت بڑھ گئی، وہ دھارے میں گھس گیا۔ قریب تھا کہ لڑکے کو پکڑ لے، لیکن پانی کی تیز دھارے میں وہ بھی سنبھل نہ سکا، غوطہ کھا گیا۔ پھر جب ابھرا تو اس کی حالت بھی اس لڑکے کی طرح ہو گئی۔ خان بابا نے دیکھا کہ شہزادہ بھی لہروں میں پھنس گیا ہے، تو اپنی کمر سے پٹکا کھولا، پٹکے کے ایک سرے پر پتھر کا ایک بڑا سا ٹکڑا باندھا اور دوسرا سرا منہ میں دبایا اور ندی میں اتر گیا۔ تیرتے ہوئے دھارے کے پاس پہنچے، پتھر والا سرا لڑکوں کی طرف پھینکا، پٹکا لڑکے کی کمر پر گرا، اس نے جھپٹ کر پکڑ لیا، پٹکا پکڑ کر لڑکے نے زور لگایا، ادھر خان بابا نے کھینچا تو لڑکے نے دھارے کو کاٹ لیا۔ خان بابا نے شہزادے کو پکارا، شہزادے شاباش، لڑکے کی ٹانگ پکڑ لو، اللہ کو بچانا منظور تھا۔ شہزادے نے ہاتھ مارا تو لڑکے کی ٹانگ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب لڑکا پٹکے کو پکڑے ہوئے اور شہزادہ لڑکے کی ٹانگ تھامے ہوئے دونوں خان بابا کی طرف بڑھنے لگے۔ خان بابا تیرتے اور انہیں کھینچتے ہوئے کنارے تک لے آئے، باہر نکالا۔ لڑکے نے سے پوچھا، تم پانی تو نہیں پی گئے؟ اس نے جواب دیا، میں نے پانی تو نہیں پیا، لیکن غوطے خوب کھائے۔ میں زیادہ دیر ندی میں نہیں رہا، اللہ نے جلد ہی مدد کے لیے آپ کو بھیج دیا، اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خان بابا نے لڑکے کا پیٹ دبا کر دیکھا، انہیں اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد تینوں اپنے اپنے کپڑے نچوڑنے لگے۔ خان بابا نے لڑکے کو غور سے دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ لڑکا بالکل شہزادے کی شکل کا تھا، وہ کبھی شہزادے کو دیکھتے اور کبھی لڑکے کو، دونوں کی عمر ایک، دونوں کی شکل صورت ایک، ناک نقشہ رنگ روپ ڈیل ڈول سبھی کچھ تو مل رہا تھا۔ خان بابا کچھ سوچنے لگے، پھر شہزادے کے کان میں کچھ کہا۔ شہزادہ بھی لڑکے کو دیکھنے لگا، ارے واہ، شہزادے کی زبان سے نکلا، اور وہ بھی کچھ سوچنے لگا۔ لڑکا ابھی تک چپ کھڑا تھا، پیار بھری نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ شہزادہ ایک لفظ خان بابا کی زبان سے سنا تھا، اس نے دل میں کہا، یہ شہزادہ ہے، شہزادوں کو تو اپنے سکھ سے کام ہوتا ہے، دوسروں کے لیے جان جوخم میں ڈالنا وہ کیا جانے، یہ کیسا شہزادہ ہے جو میری جان بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل گیا۔ اگر خان بابا مدد کو نہ آتے تو؟ لڑکا ایک لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، شہزادے تم کتنے اچھے ہو، تم فرشتہ ہو، فرشتہ، تم بادشاہوں کے ہاں کیسے پیدا ہو گئے؟ ہمارے میاں جی تو کہتے ہیں کہ بادشاہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی دوسروں پر ٹھونستے ہیں، اپنا حکم چلاتے ہیں۔ ہمارے میاں جی نے بتایا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے آگے اپنا حکم چلاتا ہے وہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ مگر شہزادے تم تو ظالم نہیں ہو، تم بادشاہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اچھا، میں سمجھا، تمہارا نام ہے شہزادہ، اور تم شہزادے ہو نہیں، ہے نا یہ بات؟ لڑکا ایک سانس میں یہ سب کہہ گیا۔ شہزادہ اور خان بابا اس کی باتیں سنتے رہے۔ لڑکا چپ ہوا تو خان بابا نے شہزادے کے کان میں کہا، تو بس ٹھیک ہے نا وہ ترکیب؟ ٹھیک تو ہے، مگر اس سے پوچھیے، یہ بھی تیار ہے؟ شہزادے نے جواب دیا۔ خان بابا نے لڑکے سے پوچھا، بیٹے کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام نوری ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ نام سن کر خان بابا مسکرائے، دل ہی دل میں کہا، واہ بھائی واہ، شکل صورت بھی ایک اور نام بھی ایک۔ پھر بولے، نوری بیٹے، شہزادے کا نام تم جانتے ہو؟ خان بابا، میں کیا جانوں، میں تو شہزادے کو کبھی دیکھا بھی نہیں، ہمارے میاں جی نے بتایا ہے کہ غیب کی بات خدا کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا، ہمارے میاں جی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اچھا تو سنو، شہزادے کا نام نور ہے، شہزادہ نور۔ ارے واہ، بالکل میرے جیسا نام۔ نوری بیٹے، تم یہ بھی تو دیکھو، تمہارے اور شہزادے کی شکل صورت بھی ملتی جلتی ہے، تم دونوں کے رنگ روپ ڈیل ڈول میں ذرا بھی فرق نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک ہی سانچے میں ڈھال کر تم دونوں کو بنایا گیا ہے۔
नूरी ने बड़े गौर से शहज़ादे को देखा। अरे वाह! वह हंसा। शहज़ादा भी मुस्कुराया। बोला, नूरी, जब हम तुम हर बात में मिलते जुलते हैं तो आओ हम तुम एक हो जाएं। एक कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ने तो अलग अलग दो जिस्म बनाए हैं। मेरा मतलब है कि हम तुम भाई भाई बन जाएं, जैसे एक बाप के दो जुड़वां बेटे। सचमुच? मगर तुम तो शहज़ादे हो और मैं गरीब आदमी, तुम भाईचारा कैसे निभा सकोगे? निभाऊंगा। तुमसे चूनी रोटी खाई जाएगी? पुलाव कोरमा खाने वाले शहज़ादे जो हो। क्यों नहीं? तुम मेरे गंवार दोस्तों के साथ खेल सकोगे? तुम्हारे रेशमी कपड़े मैले हो जाएंगे। कुछ परवाह नहीं। शहज़ादे, तुम कितने अच्छे हो। अच्छा तो फिर क्या कहते हैं? अच्छा तो फिर कहते कहते नूरी चुप हो गया। खान ने देखा कि नूरी कुछ कहते कहते चुप हो गया तो बोले, हाँ बेटा नूरी, तुम क्या कहना चाहते थे? कहो कहो, तुम तो बड़े अच्छे लड़के हो। मैं कहना चाहता था। अच्छा तो पहले ये बताइए, शहज़ादा मेरी बात मानेगा? ज़रूर मानेगा। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि शहज़ादा हमारे घर चले। यहाँ से थोड़ी ही दूर जो गांव है, नूरपुर, मैं इसी गांव में रहता हूँ। वहाँ मैं शहज़ादे की बड़ी खातिर करूँगा। मैं उसे दूध भात खिलाऊँगा। मेरे साथी शहज़ादे को देखकर बहुत खुश होंगे। हम सब मिलजुल कर खेलने जाएंगे। शहज़ादा फूलों की सेज पर सोने वाला, जंगल में क्या दौड़ सकेगा, दरख्तों पर भी ना चढ़ सकेगा। हम सब चढ़ जाएंगे, अच्छे अच्छे फल तोड़कर खाएंगे। शहज़ादा नीचे खड़ा का खड़ा रह जाएगा। हम पेड़ के ऊपर ही उसे फल दिखा दिखा कर खाएंगे और उसे खूब चिढ़ाएंगे। बड़ा मज़ा आएगा। नूरी हंसने लगा। और हाँ खान बाबा, गांव वाले जब देखेंगे कि दो लड़के एक शक्ल और सूरत के हैं तो वह तअज्जुब के साथ कहेंगे, क्या अल्लाह की कुदरत है, क्या अल्लाह की कुदरत है। मैं शहज़ादे को मियाँ जी के पास ले जाऊँगा। शहज़ादा उनसे कुरान सीखेगा। मियाँ जी उसे नमाज भी सिखाएंगे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें याद कराएंगे। प्यारे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे बुज़ुर्गों के किस्से सुनाएंगे। ये सब सीख और सुनकर शहज़ादा बड़ा नेक बन जाएगा। नूरी ने शहज़ादे को बड़े प्यार से देखा। मगर खान बाबा सुनिए तो, एक बात और है। मियाँ जी बुरी बात करते देखते हैं तो फिर अल्लाह मेरी तौबा ऐसा गुस्सा करते हैं कि बस मैं क्या कहूँ। अगर लड़के ने तौबा कर ली तो खैर, अपनी ज़िद पर अड़ा रहा तो धज्जियाँ उड़ा देते हैं, है ना बाबा। मैं शहज़ादे को वहाँ ना ले जाऊँगा। ये तो हमारे मियाँ जी की मार ना सह सकेगा। और अगर शहज़ादे को भी गुस्सा आ गया तो ना जाने क्या कर डाले अपने बाप। जी हाँ, बादशाह सलामत से शिकायत कर देगा। तो बादशाह सलामत हम सबको। नूरी आगे ना कह सका। वह डर गया। सहमी हुई नज़रों से शहज़ादे को देखने लगा। उसने कहा, खान बाबा अब मैं चलता हूँ। ज़हूरी मुझे डंडा लेकर ढूंढ रहा होगा। मुझे बड़ी देर हो गई है। आज मेरी खूब पिटाई करेगा वह। ज़हूरी कौन है? शहज़ादे ने पूछा। वह मेरा बड़ा भाई है, मुझसे 5 साल बड़ा है। ज़रा सी बात पर मुझे बुरी तरह ठोक देता है। अच्छा तो बेटे नूरी, ये करो, तुम शहज़ादे के कपड़े पहन लो और मेरे साथ चलो। और शहज़ादा तुम्हारा श्लोका और लुंगी पहनकर गांव की तरफ चला जाएगा। तुम दोनों एक शक्ल के हो ना। गांव वाले ये जानेंगे कि शहज़ादा है और ना ही शाही महल में तुम्हारे बारे में कोई जान सकेगा। तुम शहज़ादा नहीं बल्कि नूरी हो। फिर तो बड़ा ही मज़ा आएगा। कहो नूरी, कैसा रहेगा ये खेल? आहा, बड़े मज़े का रहेगा। नूरी मुस्कुराया मगर फिर सोच में पड़ गया। खान बाबा ने नूरी से पूछा, बेटे अब किस सोच में हो? नूरी ने कहा, देखिए तो खान बाबा, अगर किसी को मुझ पर शुबा हो गया और भांडा फूटा तो बादशाह सलामत मुझको कोल्हू में पिलवा देंगे। ना बाबा, मैं नहीं जाता। मैं शहज़ादा नहीं बनूंगा। मुझे अपना गांव ही अच्छा है। मैं जो तुम्हारे साथ हूँ नूरी, मैं तुमको सब कुछ बताता रहूँगा। खान बाबा ने शहज़ादे को इशारा किया। शहज़ादा अपना कपड़े उतारने लगा। नूरी चुपचाप खड़ा देखता रहा। खान बाबा ने उसे शहज़ादा नूर के कपड़े पहनाए और उसका कुर्ता और तहमद शहज़ादे को दे दिया। फिर बोले, देखो बेटे नूरी, अब तुम शहज़ादा नूर हो और ये है नूरी। अच्छा तो ये नूरी किधर जाएगी? तुम्हारे गांव पहुंच जाएगा। तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है? तुम्हारे गांव में किधर घर है? ज़हूरी को ये कैसे पहचानेगा? नूरी भौचक्का खड़ा था। वह कुछ समझ ही ना सका कि ये क्या हो रहा है। खान बाबा बोले, घबराओ नहीं, मैं जब कहोगे तुम्हारे गांव पहुंचा दिया जाएगा। फिर मुस्कुराकर कहा, देखो ऐसा ना हो कि शाही महल के सुख में असली शहज़ादे को भूल जाओ, फिर ना और असली शहज़ादा गांव में धक्के खाता रहे। धक्के? नूरी मुस्कुराकर बोला, अच्छा चलो, ये भी एक खेल ही सही, देखें इसमें क्या मज़ा आता। अच्छा तो देखो शहज़ादे,
वह जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है ना, उसके उधर से जाओ, रास्ता मिलेगा, आगे चलकर नाला पड़ेगा, नाले से दाहिनी तरफ मुड़ जाना, आगे खेत है, वहीं चरवाहे मिलेंगे। मेरी गैया ना जाने कहाँ हो, और बकरियाँ, अरे मेरी तौबा, मैं कितनी देर से यहाँ हूँ। आज ज़हूरी मुझे खूब पिटेगा, वह मुझे ढूंढ रहा होगा। ज़हूरी अब तुमको कहाँ पाएगा, मगर तुम शाम तक शाही महल के अंदर होगे। अब तो शहज़ादे पर जो पड़ेगी वह भुगतेगा। मगर बाबा, ये तो कोई अच्छी बात नहीं, मेरी वजह से शहज़ादा क्यों पिटे? मगर वह भी तो खेल खेलना चाहता है, वह चाहता है कि गांव की हवा खाए और देखे कि वहाँ क्या होता है, लोग किस तरह रहते हैं, इनको किन किन बातों की ज़रूरत है। फिर जब ये बादशाह होगा तो सोचो कैसी अच्छी तरह राजपाट करेगा, रआया का दुख सुख समझेगा, ऐसा इंतज़ाम करेगा कि सबको आराम होगा। हाँ, ये बात होगी। अच्छा, तो मैं तैयार हूँ, अल्लाह मालिक है। शहज़ादे, तुम बड़े अच्छे हो। अच्छा तो जाओ, खुदा हाफिज़। और देखो, जब घबराना तो चले आना, आकर फिर शहज़ादे बन जाना, मैं चुपके से खिसक जाऊँगा। और देखो, मियाँ जी का कहना मानना और मेरी बूढ़ी माँ का काम कर देना। और वह जो नूरान है, मेरी छोटी बहन, उसे मारना नहीं, उसकी गुड़िया ना छीनना। और देखो, कबड्डी खेलना तो मेरा जो दोस्त है बहादुर, उसकी तरफ रहना। बहादुर सचमुच बड़ा बहादुर है, लंगड़ी खूब लगाता है। और जलाल से होशियार रहना, वह टांग पकड़ता है। और देखो ना, गोलियाँ खेलना ना गेड़ियाँ, मियाँ जी बुरा मानते हैं। और देखो, मेरा सलाम मियाँ जी से कहना। अरे तौबा, सलाम कैसा, अब तो तुम ही नूरी हो, मियाँ जी को क्या पता। नूरी हंसने लगा। खान बाबा ने कहा, अच्छा बस इतना तो पता काफ़ी है, अब चलो तुम मेरे साथ और जाओ प्यारे नूर, अगर ज़िंदगी है तो फिर मिलेंगे। शहज़ादा नूर आंखों में आंसू भर लाया, खान बाबा से लिपट गया। देखकर नूरी से रहा ना गया, बोला, अच्छा शहज़ादे, हटाओ भी ये मजाक, जाने भी दो खेल, मैं तुमको रोता नहीं देख सकता, मुझ पर तुम्हारा एहसान है, अपनी अपनी राह लगो। अगर मेरी ज़िंदगी है और खुदा को मंजूर है तो खुदा ना करे तुम पर कोई वक्त पड़े, लेकिन फिर भी मैं कभी ज़रूरत हो तो मेरी जान हाजिर है। ये कहकर नूरी अंगरखा उतारने लगा। शहज़ादा नूर घबरा कर कहा, नहीं नूरी, मैं तुम्हारे गांव ज़रूर जाऊंगा। ये कहकर वे नूरी के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। नूरी फिर पुकारा, शाम को हुसैनी पहलवान के अखाड़े में ज़रूर जाना, मेरा फुरी गद का रहमत के पास है, रहमत अल्लाह का बड़ा अच्छा लड़का है, इसी के पास से मेरी गुलेल है और गुल्ले भी, वह सब तुमको देगा। और देखो, फातिमा के घड़े ना तोड़ना बहुत बुरी बात है, किसी गरीब को सताना, अल्लाह मियाँ खफा हो जाते हैं जालिम आदमी से, समझे। शहज़ादा मुड़ कर देखता जाता और हाँ करता जाता था। खान बाबा और नूरी उसे देख रहे थे। शहज़ादा नूर बरगद के पेड़ तक तो दिखाई देता रहा, उसके बाद नाले की तरफ मुड़ गया। खान बाबा की आंखों से दो मोटे मोटे कतरे गिरे और वह नूरी को लेकर शाही महल की तरफ चल दिए। नया देश नया भेष। नूरी शहज़ादा नूर के लिबास में खान बाबा के साथ चला। खान बाबा उससे कहा, देखो बेटा नूर, आज मैंने तो सोचा कुछ था और हुआ कुछ, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। नूरी बीच में बोल पड़ा, खान बाबा, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। खान बाबा ने उसकी बात सुनी, अनसुनी कर दी और अपनी सुनाने लगे। देखो बेटा नूरी, ये किसी तरह ना भूलना कि अब तुम शहज़ादा नूर हो। थोड़ी देर में 50 सवार हथियारों से लैस तुम्हारे सामने हाजिर होंगे। ये 50 सवार उन सिपाहियों में से हैं जो शहज़ादा नूर की हिफाजत के लिए हैं। तुम इनके रोब में ना आना, और देखो वह सब तुमको सलामी देंगे तो जवाब तो देना, मगर सलाम में पहल ना करना। मगर ये बात तो अच्छी नहीं, पहले सलाम करने वाले को ज़्यादा सवाब मिलता है। ये बात हमारे मियाँ जी ने एक हदीस पढ़कर समझाई थी। हाँ वो तो है, मगर वह तो है, मगर भाई अब तुम शहज़ादे हो, अगर तुमने किसी को पहले सलाम किया या रोब में आ गए तो लोग तुमको पहचान लेंगे, फिर बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जब शहज़ादा बने तो शहज़ादा ही बने रहो। अच्छा बाबा, जो तुम कहो। नूरी मुस्कुरा दिया। और बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे। देखो बेटा, आज मैंने इन सवारों को साथ लिया, जंगल की सैर को चला। शहज़ादा कई दिन से ज़िद कर रहा था कि हिरन का शिकार खेलेगा। जंगल के करीब आकर हिरनों का गौल दिखाई दिया। शहज़ादे ने एक हिरन को ताका, उसके पीछे घोड़ा डाला। हिरन तो जंगल में घुस गया। हम दोनों इधर आ गए, एक दरख्त के नीचे लेट गए। शहज़ादा नदी की तरफ चला गया, वहाँ तुम मिल गए। घोड़े कहाँ हैं? वे रहे सामने, खान बाबा ने इशारा किया। नूरी ने उधर देखा। एक दरख्त के नीचे दो
कला रास घोड़े खड़े थे, उनकी लगामें दरख्त की शाख से अटकी थीं। खान बाबा नूरी के घोड़ों के पास ले गए, एक घोड़े पर नूरी को सवार कर दिया और दूसरे पर खुद सवार हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर गए थे कि सवार नजर आए। खान बाबा ने नूरी से कहा, होशियार हो जाओ, अब तुम शहजादा नूर कहकर पुकारा करूँगा, समझे? जी खान बाबा। नूरी होशियार हो गया। सवारों ने खान बाबा और शहजादे को देखा, वे सब खुश हो गए। पास आए, सबने सलामी दी, हाल पूछा। खान बाबा ने सबको इत्मीनान दिलाया कि कोई ख़ास बात नहीं हुई और फिर आगे बढ़े। 1 दर्जन सिपाही आगे आगे, बाकी पीछे चले। राजधानी के पास पहुँचे। अब तो नूरी को बड़े बड़े महल दिखाई देने लगे। उसने खान बाबा से कहा, ये क्या? खान बाबा ने उसे आगे बोलने नहीं दिया। आगे वाले सिपाहियों में से एक का नाम लिया और हुक्म दिया, जानिसार खान, सीधे शाही महल की तरफ चलो। जानिसार खान हुक्म पाते ही शाह महल की तरफ मुड़ गया। सब उसी तरफ मुड़ गए। रास्ते में खान बाबा की बारादरी और उनका बाग था। थोड़ी देर वहाँ ठहरे। नूरी बाग देखकर दंग रह गया। वह समझता था कि इमाम बाड़े से बड़ा मकान होता ही नहीं। ये बारादरी तो इमाम बाड़े से भी बढ़कर थी। शाही सामानों से सजी हुई सैकड़ों नौकर चाकर अंदर काम कर रहे थे। यहाँ ठहरकर नूरी को कुछ फल फुलाली और मेवे खिलाए गए, कुछ फलों का रस पिलाया गया। नूरी ये सब खा पी रहा था और उसे बहन की याद आई। दिल में कहने लगा, उस वक्त नूरान होती तो खूब जेबें भरती और सेब तो सब खा लेती। उल्टे कहती, अम्मा भैया ने सारे सेब खा लिए। नूरी मुस्कुरा दिया। सूरज डूबने को था। इसे ख्याल आया कि अभी उसने नमाज नहीं पढ़ी। उसने खान बाबा से कहा। खान बाबा ने इशारा किया, अंदर जाकर पढ़ लो। सबके सामने पढ़ोगे तो लोग एक नई बात समझेंगे और खुदा जाने क्या शक करे। नूरी समझ गया, शहजादा नमाजी ना था। ये लोग मुसलमान तो हैं मगर इन्हें इस्लाम और खुदा की बंदगी से कोई लगाव नहीं।